नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत आपके साथ। मैं हूं ज्योत्सना बेदी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच का इस्तेमाल भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए किया, लेकिन उनका यह दांव उल्टा पड़ गया। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर फिर से कश्मीर का राग अलापने वाले पाकिस्तान को भारत की स्नेहा दुबे ने राइट टू रिप्लाई के तहत मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारत ने कहा, संयुक्त राष्ट्र मंच का पाकिस्तान ने हमेशा गलत इस्तेमाल किया। ओसामा बिन लादेन का नाम लेकर भारत ने दुनिया के सामने पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी कि कैसे आतंक का आका आतंकवाद का समर्थन करता रहा। भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी स्नेहा दुबे ने कहा कि अफसोस की बात है कि पाकिस्तान के नेता ने भारत के खिलाफ झूठे और दुर्भावनापूर्ण प्रचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के मंच का दुरुपयोग किया है। Reverse its unilateral and illegal measures instituted since 5th August 2019. Secondly, stop its oppression and human rights violations against the people of Kashmir. And three, halt and reverse the demographic changes in the occupied territory. It is also essential to prevent another conflict between Pakistan and India. India's military build-up, development of advanced nuclear weapons, and acquisition of destabilizing conventional capabilities can erode mutual deterrence between the two countries. Let me reiterate here that the entire Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are, and will always be an integral and inalienable part of India. This includes the areas that are under the illegal occupation of Pakistan. We call upon Pakistan to immediately vacate all areas under its illegal occupation. There's only one way to go. We must strengthen this current government, stabilize it, for the sake of the people of Afghanistan. What have the Taliban promised? They will respect human rights. They will have an inclusive government. They will not allow this soil to be used by terrorists. And they have given amnesty. Now, if the world community incentivizes them, encourages them to walk this talk, it will be a win-win situation for everyone. Mr. President, we marked the solemn occasion of the 20th anniversary of the 9/11 terror attacks just a few days back. The world has not forgotten that the mastermind behind that dastardly event, Osama bin Laden, got shelter in Pakistan. Pakistan leadership continues to glorify him as a martyr. Regrettably, even today, we heard the leader of Pakistan trying to justify acts of terror. Such defense of terrorism is unacceptable in the modern world. The most recent example of Indian barbarity was the forcible snatching of the mortal remains of the great Kashmiri leader, Sayyid Ali Shah Gilani, from his family, denying him a proper Islamic funeral and burial in accordance with his wishes and the Muslim tradition. Devoid of any legal or moral sanction, this action has been against the basic norms of human decency. I call on this General Assembly to demand that Sayyid Gilani's mortal remains be allowed to be buried in the cemetery of martyrs with the appropriate Islamic rites. Member states are aware that Pakistan has an established history and policy of harboring, aiding, and actively supporting terrorists. This is a country which has been globally recognized as one openly supporting, training, financing, and arming terrorists as a matter of state policy. It holds the ignoble record of hosting the largest number of terrorists proscribed by the UN Security Council. तो आप सुन रहे थे किस तरह भारत की तरफ से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को जवाब दिया गया है। मेरे साथ खास मेहमान इस समय लाइव मौजूद हैं। मेरे साथ मंजू सेठ जी हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट है। मैम, आपका स्वागत है। अशोक सज्जनहार जी हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट है। सर, आपका भी स्वागत है।
मिस्टर तयाल मेरे साथ हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट है। सर आपका भी स्वागत है। और साथ ही मिस्टर यूसुफजई, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, आपका भी स्वागत है। सर हम सबका स्वागत करते हैं और खुशी के साथ करते हैं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी कंसल्टिंग एडिटर सृंजॉय चौधरी जी भी हैं। सृंजॉय जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूं। एक बार फिर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यूएन जैसे मंच का इस्तेमाल किया और जहर उगला भारत के खिलाफ। फिर से प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ सामने रखने की कोशिश की और खुद बेनकाब हुए। हर देश ने देखा कि झूठ बोल रहे हैं। अब जब प्रधानमंत्री मोदी बोलेंगे सृंजॉय जी, तो उसे भी पूरी दुनिया देखेगी। देखिए, इमरान खान जो कहा है उसका जवाब तो स्नेहा दुबे जी दे दिए हैं, एंड इट वाज इतने अच्छे से दे दिए हैं, उसके बाद तो कुछ कहना ही नहीं है। हाँ, तो ये छोड़ के आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज कहेंगे, बात रखेंगे। देखिए, पूरा द होल वर्ल्ड विल लिसन। इमरान खान का बात ये कई जनरल ये भाषण लिखे हैं और वो भी सुन रहे हैं, वो छोड़ के तो कोई है नहीं सुनने का। लेकिन मोदी जी का जो स्पीच रहेगा इसमें 5-6 चीज रहेगा। एक रहेगा ऑन अफगानिस्तान पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के बारे रहेगा। अफगानिस्तान ये आतंकवाद का गढ़ ना हो जाए इसके बारे रहेंगे। कोविड के बारे बात करेंगे, क्लाइमेट चेंज के बारे बात करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए यूएन अभी जैसा है वो 1945 को रिफ्लेक्ट करता है। ये कंटेम्प्ररी यूएन बनाना है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का चेंज होना है, ये सब बात रखेंगे। एज मुझे एक गवर्नमेंट के कोई कहा है, प्राइम मिनिस्टर विल नॉट स्टूप टू इमरान खान लेवल। बिल्कुल। तो जिस हद तक पाकिस्तान चला जाता है कि यूएन जैसे मंच का इस्तेमाल करता है, झूठ बोलता है, भारत के खिलाफ जहर उगलता है, हम इतना नीचे नहीं गिरेंगे। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो मेरे साथ हैं मिस्टर यूसुफजई, वो सुन रहे होंगे। यूसुफजई, इमरान खान बार बार अपने ही शब्दों से बेनकाब हो रहे हैं, यूएन जैसे मंच का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहर उगल रहे हैं भारत के खिलाफ। अपने देश की बात करते हैं ना कि मेरे देश में बहुत गरीबी है, बाकी के देश मेरा साथ दें, मुझे जरूरत है आपकी। बिल्कुल सही कहा आपने कि पाकिस्तान के जो इंटरनल मैटर्स हैं, जो मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसके ऊपर मेरे ख्याल में ज्यादा फोकस करने की जरूरत है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को और उनकी कैबिनेट को। लेकिन अफसोस के साथ कि वो इसलिए ये सारी चीजें कर रहे होते हैं कि उनको यहाँ की आवाम की वाह हासिल करनी होती है, कि वो मतलब लोग उनकी वाह करें, क्योंकि हिंदुस्तान का जो नैरेटिव है अगेंस्ट हिंदुस्तान वो बिकता ज्यादा है, इसलिए लोग इसको ज्यादा इस तरीके से यूज करते हैं। बाद में मतलब यहाँ पे आके, अभी तो ये गए भी नहीं है, लेकिन इससे पहले जब ये गए थे वहां पे भी इन्होंने 40-45 मिनट की तकरीर दे मारी थी 2 साल पहले। उसके बाद क्या हुआ? कोई काम इन लोगों ने, मैं कहता हूँ अगर ये कश्मीर की भी बात करते हैं तो कश्मीर के लिए ये करते क्या है? मुझे सिर्फ ये बता दें कि इनकी कैबिनेट ने, इनके जो मिनिस्टर वहां पे पहुंचे हुए हैं, शहरियार अफरीदी साहब, वो क्या कर रहे हैं उनको पता नहीं है। मतलब वो लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं और वो वहां पे मतलब अमेरिका में फिर के कभी एक जगह की वीडियो बना रहे हैं और अपने सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं और कभी दूसरी जगह पे बना रहे हैं। इमरान खान साहब को चाहिए तो ये था कि भाई वो बात करते, सॉलिड बात करते कि हाँ हमने टेररिज्म को भुगता है, हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज्म का इशू है, हमारे यहाँ पॉवर्टी है, उसको हमने खत्म करना है, यूथ को हमने एम्प्लॉयमेंट देनी है, एजुकेशन के ऊपर हमने फोकस करना है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमने काम करना है, जो मेरे ख्याल आने वाली जो हमारी नस्लें होंगी उनके लिए बहुत जरूरी है। बजाय इसके, और कश्मीर का मुद्दा, अगर कश्मीर के मुद्दे के ऊपर हम बात भी करते हैं, हम उसको मेरे ख्याल में, मैं पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि शायद उसको हम हल करना ही नहीं चाहते, क्योंकि बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी उससे जुड़ी हुई है। अगर वो खत्म हो जाएगा, मुद्दा ही खत्म हो जाएगा, तो आप वहां पे दिल्ली में बैठ के या मुंबई में बैठ कर, बिल्कुल में बैठ के, बिल्कुल मिस्टर यूसुफजई, मेरा दिन बन गया आज मेरा दिन बन गया। मैं एक पाकिस्तान के जिम्मेदार और अच्छे नागरिक से, एक अच्छे पत्रकार से बात कर रही हूँ, जो आलोचना कर रहे अपने प्रधानमंत्री की कि जो उन्होंने कहा गलत कहा, उनको ये कहना चाहिए था, ये बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था। मंजू सेठ जी, पाकिस्तान को अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखना होता पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को? हर देश को और खासकर पाकिस्तान को तो बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ की जो
इकोनॉमिक हालत है इस वक्त वो बहुत ही सैड स्टेट में है, क्योंकि वो बिल्कुल डेट लेडन हो गए हैं और सब जगह से निवेश ऑलमोस्ट बंद हो गए हैं उनके उनको तो अपने देश को पहले देखना चाहिए और ये बताना चाहिए कि हमने अपने देश के लिए क्या किया है, बिल्कुल क्या हमें करना चाहिए। और जो वर्ल्ड इश्यूज हैं, कोविड है या क्लाइमेट चेंज है, उन पे थोड़ा उनको फोकस और करना चाहिए था। इन पासिंग उन्होंने मेंशन किया था अपनी स्पीच में, लेकिन मेन जो उनका फोकस था वो इंडिया और जम्मू एंड कश्मीर पे था। तो ये इनका जो प्रोपेगेंडा है ये और जो इस तरफ से बोलते हैं, ये आई थिंक अब दुनिया समझ गई है। और आपने देखा कि जो बाइडेन और प्रेसिडेंट जो बाइडेन और हमारे प्राइम मिनिस्टर के बीच में जो मुलाकात हुई और जो डिस्कस किया और स्टेटमेंट जो रिलीज हुआ है, उसमें भी नेम नहीं किया है किसी कंट्री को, पर टेररिज्म के ऊपर और कंट्रीज जो उनको पनाह देती हैं टेरर। मंजू सेठ जी, कमला हैरिस ने खुलकर नाम लिया है। अशोक सज्जनार जी मेरे साथ मौजूद हैं। अशोक सर, कमला हैरिस ने खुलकर नाम लिया है कि पाकिस्तान को कार्रवाई करनी होगी, और वैसे अब अमेरिका भी समझ रहा है अफगानिस्तान के हालात के बाद। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कमला हैरिस ने तो बिल्कुल बिना किसी एम्बिग्विटी के, बिना किसी शक के उन्होंने उसका जिक्र किया है और सो मोटो किया है। ये ध्यान रखने के काबिल है, लायक है, जो यहाँ से प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को नहीं उठाया। वहां पर कमला हैरिस ने स्वयं ये मुद्दा उठाया और कहा जो पाकिस्तान के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए, पाकिस्तान को हमें ताकीद देनी चाहिए कि वो इस सब मामले में आतंकवाद के विरुद्ध वो पूरी तरीके से कार्रवाई करे। तो देखिए, जो आपने कहा, अमेरिका को ये पहली बार नहीं मालूम है। जैसे स्नेहा दुबे ने भी कहा, जैसे पूरी दुनिया इससे वाकिफ है। जो 2011 में जब ये ओसामा बिन लादेन को मारा गया था, तो कहां वो मिला था? वो मिला था एबोटाबाद में, 800 मीटर वहां की कंटोनमेंट हेडक्वार्टर्स में। वहां पर 4 मंजिला घर में, वो आलीशान घर में आराम से रह रहा था। तो ये सब पाकिस्तान की मेहरबानी है। परंतु ये कहते हुए आपके इसमें शो में जो सम्मिलित हैं यूसुफ जाहिद साहब, उनको मैं अपलॉड करता हूं, उनको मैं बहुत ही मुबारकबाद देता हूं, जो उन्होंने बिल्कुल ठीक आईना दिखाया है पाकिस्तान को। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान यही करता है जो इन्होंने बताया है, अपने यहाँ पर अपनी डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी की वाहवाही लेने के लिए। और जैसे श्रीजय बता रहे हैं, जो ये वहां के पाकिस्तान के आर्मी जनरल्स ने उनकी ये स्पीच लिखी है, उनकी तकरीर उन्होंने लिखी है, तो बस वही सुनते हैं, दुनिया में और कोई नहीं सुनता है। अब आप देखिए, 193 देश के लीडर्स वहां पर बोलेंगे, कितने लोग वहां पर कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे? बिल्कुल क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान की एकदम खत्म हो गई है। तो उसको सेल्फ डिनायल में नहीं रहना चाहिए, अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। और क्रेडिबिलिटी खत्म करने के पीछे खुद पाकिस्तान जिम्मेदार है, खुद पाकिस्तान जिम्मेदार है। मिस्टर तयाल सर, आपके पास आ रही हूँ। सर, ये कश्मीर ऑब्सेशन कब खत्म होगा पाकिस्तान का? जब पता है पाकिस्तान को कुछ हमारे हाथ नहीं लगना, पाकिस्तान को पता है कि हमें आराम से पीओके का जो हिस्सा भारत का है वो वापस कर देना चाहिए, नहीं तो उसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। फिर बार बार कश्मीर का राग अलापना क्या मतलब है सर? देखिए, कश्मीर का मसला तो पाकिस्तान में खत्म नहीं होगा, इसलिए क्योंकि उसकी वजह से वो भारत के साथ दुश्मनी साधे हुए हैं और उसकी वजह से वहाँ आर्मी रूल करती है। इमरान खान वगैरह तो पपेट है, वो तो जो उनको स्पीच दे दी गई वो उन्होंने बोल दिया। पर देखिए, ये तो एक एनुअल रिचुअल है, एनुअल तमाशा है जो कि यूनाइटेड नेशंस में होता है। पाकिस्तान के जो भी रिप्रेजेंटेटिव बोले वो कुछ कश्मीर का जिक्र करते हैं। इस बार इमरान खान ने कुछ ज़्यादा बोल दिया, प्रधानमंत्री इमरान खान ने। और हमारी एक सेकंड सेक्रेटरी या फर्स्ट सेक्रेटरी कोई उसका बिल्कुल भरपूर और ताकतवर जवाब दे देते हैं। दुनिया के और किसी देश में जो 200 मेंबर्स हैं करीब करीब यूनाइटेड नेशंस के, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान वहाँ क्या कह रहा है। और ये सब जो है, जैसा कि अभी कहा गया, ये पाकिस्तान की जनता को दिखाने के लिए है कि साहब ने बड़ी बड़ी बातें करके आए। पर अगर कश्मीर का मामला है मामला, उसको केवल एक मामला है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर एक इलीगल पोजीशन में है पाकिस्तान के, और वो भारत को वापस आना चाहिए। जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था राजा हरि सिंह ने, वो जम्मू एंड कश्मीर के राजा थे, और जो उनकी टेरिटरी थी उसमें पूरा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर था। तो अगर किसी मुद्दे पर कश्मीर पर बात होनी है, वो केवल पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर किस तरह से
भारत के पास लौटे उस पर होनी है। और दूसरी बात 1971 का शिमला एग्रीमेंट है, जिसमें बहुत क्लियरली कहा गया है कि जो भी मसले हैं और कश्मीर का मसला है वो बायलैटरली 1972 का जो एग्रीमेंट है, शिमला एग्रीमेंट, कि वो भारत और पाकिस्तान बायलैटरली डायरेक्टली बातचीत करके तय करेंगे। तो ये जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाला मसला है, ये डायरेक्टली बातचीत करके तय होगा। उसका यूनाइटेड नेशंस से कोई लेना देना नहीं है। ये पाकिस्तान भी जानता है, भारत तो जानता ही है और दुनिया भी जानती है। पर ये अपने पॉइंट्स अपनी जनता के सामने गेन करने के लिए बिल्कुल, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जो कहा है, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं। कश्मीर में पुरानी व्यवस्था बहाल हो, क्यों हो? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से सवाल पूछा जाना चाहिए। आरएसएस मुस्लिमों को निशाना बना रहा है, कश्मीर की डेमोग्राफी बदल दी है। सैयद अली शाह गिलानी इनके लिए मार्टर हैं। तालिबान को मान्यता दे दुनिया, ये कह रहा है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। पाक पत्रकार यूसुफ जई मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। क्या वाकई ऐसा है यूसुफ जई जी कि रावलपिंडी से जो कुछ लिख कर के आया उस तैयार पर्चे को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री यूएन के मंच से पढ़ देंगे? अपने विचार, अपना विवेक इमरान खान का नहीं है क्या? ये मतलब जिसे कहते हैं अनफॉर्चुनेट है हमारे यहाँ कि डेमोक्रेसी उस तरीके से स्ट्रांग नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। इन्फ्लुएंस हमारे यहाँ इस्टेब्लिशमेंट का ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, बल्कि कल भी एक बड़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग आईएसआई हेडक्वार्टर में मतलब वैसे तो इमरान खान साहब ने चेयर की थी, लेकिन आर्मी चीफ एंड डीजी आईएसआई फैज हमीद साहब वहाँ पे मौजूद थे और मतलब इस रीजन के हवाले से उन्होंने बातचीत की। बात मैं वही आपको बता रहा हूँ कि अफगानिस्तान का इशू है, कश्मीर का इशू है या कोई भी इशू है, लेकिन सबसे पहले तो आपने अपने घर के इश्यूज को सॉर्ट आउट करना है, तो देन यू विल गो समवेयर एल्स ना। आपने फिर अपने प्रोविंसेस को करना है, फिर आप अपने बॉर्डर से बाहर जाके देखते हैं और फिर उसके बाद आपका अगर कोई नेबर में कोई मसला है कंट्री में, जिस तरह अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त मौजूद है या कहीं और है, तो तब आप जाके उसके ऊपर बात कर सकते हैं। अफगानिस्तान का एक इशू है, लेकिन उनकी अपनी एक हुकूमत, जैसी भी हुकूमत बनी है, अमेरिका ने उनको हैंडओवर किया। अफगानिस्तान तालिबान को उन्होंने उनके साथ बातचीत की है। हमें क्या जरूरत है कि खामखा के वहां उनके जो है स्पोक्सपर्सन बनने की कोशिश करते हैं कि अगर फलां ने इनको रिकॉग्निशन नहीं दी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, फलां ने इनको रिकॉग्निशन दी। भाई रिकॉग्निशन उनको देंगे जिस दुनिया के जिस कंट्री ने देना है, वो खुद उनके साथ आके काबुल में बैठ जाएंगे, उनके साथ बातचीत कर लेंगे। नहीं करेंगे तो उनका अपना मसला है, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते इस चीज के लिए। दूसरी चीज जो इंटरफेरेंस की बात आप बता रही है, इंटरफेरेंस मुसीबत यह है कि हमारे हुकूमत के अंदर तो होता है वो, मतलब मैं अक्सर कहता हूं कि पावर हाउस जो है वो इस्लामाबाद का पार्लियामेंट नहीं बल्कि रावलपिंडी है। इसके साथ साथ फिर अफगानिस्तान के लोग अभी जो वहां पे तालिबान है, मैं कुछ दिन पहले वहीं पे काबुल में था, मुख्तलिफ लोगों से मेरी बात हुई वहां पर। दिल्ली में उन लोगों ने मतलब क्लियर कट कहा, मैं हुकूमत उनके जो अभी नई हुकूमत है उनकी तालिबान लीडर की बात बता रहा हूँ, वो इस चीज से नाखुश है, वो नाराज है। वो कहते यार हमारे मुल्क के अंदर हम जैसे भी हैं, जो भी हैं, हम मतलब कर लेंगे, दुनिया हमें जिस नजर से भी। तालिबान का समर्थन करना शायद इमरान खान की मजबूरी है। सृंजॉय जी लगातार मेरे साथ बने हुए। सृंजॉय जी, जिस रोल में चाइना पाकिस्तान के लिए है, वही रोल अब पाकिस्तान का तालिबान के लिए है। पाकिस्तान को एक और फर्टाइल ग्राउंड तैयार करना था, अपना छोटा भाई तैयार करना था ताकि आतंक फैल सके। यह मजबूरी है इमरान खान की। देखिए एक जो है तालिबान तो 20 साल से अब पाकिस्तान में रहते थे। तालिबान रहते थे कहाँ? क्वेटा में। क्वेटा शुरा है तो बलूचिस्तान में रहते थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में रहते थे। जितने सेफ हेवन है सब तो यहाँ ही थे। तालिबान का पैसे कहाँ से आया? पाकिस्तान से आया और ड्रग ट्रैफिकिंग से आया। और तालिबान का हथियार कहाँ से आया? आईएसआई से आया। तालिबान का जो मिलिट्री प्लानिंग था वो कहाँ से आया? पाकिस्तानी मिलिट्री से आया। तो ये तो पूरा पाकिस्तान की ऑपरेशन था। उसके बाद आप देखिए उनका इंटीरियर मिनिस्टर है कौन? है सिराजुद्दीन हक्कानी। सिराजुद्दीन हक्कानी वांटेड टेररिस्ट है। मान लीजिए हमारा गृह मंत्री को दाऊद इब्राहिम को बनाए गृह मंत्री, वो एक ही बात है। सिराजुद्दीन हक्कानी को अफगानिस्तान में आपका इंटीरियर मिनिस्टर बनाना, तो यही तो है आपका तालिबान। उसके साथ पाकिस्तान, उसका एक ही दो प्रॉब्लम है अभी तालिबान का। एक है लेजिटिमेसी, क्योंकि यूएन का जो सीट है वो अभी भी तालिबान के पास आया नहीं।
और आने में बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि सब देश समझते हैं ये विमेन के बारे में उनका क्या आउटलुक है, सबका पता है माइनॉरिटीज के बारे क्या करते हैं, अभी सबका बारे पता है क्या कैपिटल पनिशमेंट कैसे करते हैं। उसके बाद जो सेकंड बात है, तालिबान का कुछ पैसे नहीं है, तो पैसे कहां से आएगा। चीन बोला है हम $40 बिलियन देंगे, लेकिन चीन कभी $40 बिलियन मजा करने के लिए नहीं देते हैं। तो सैंक्शंस का एक मामला है। और आपको एक चीज बता दूं खाली, सैंक्शंस यूएन का जो सैंक्शंस कमेटी है उनका चेयरमैन है एक देश, वो देश है भारत। ओके, ठीक है सृंजॉय जी, शुक्रिया। आपको निकलना है, मेरे को एक कमांड में बता रहे हैं मेरे डायरेक्टर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ एनआरआई जुड़े हुए हैं, देव कार्लेकर उनका नाम है। सर, आपसे पहले भी बात हुई है निवेश को लेकर, व्यापार को लेकर, अभी बात हो रही है पाकिस्तान की। हमारा देश लगातार जवाब दे रहा है। अब आज जो यूएनजीए में प्रधानमंत्री बोलेंगे, आप क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं? निवेश के तौर पर, व्यापार के तौर पर तो बाजार बहुत बड़ा है, आपने एक एक बिंदु पर हमारे साथ डिस्कशन किया। अब ज्योत्सना जी, फिर से आपका आभार, आपने इस मंच में मुझे आमंत्रित किया। मोदी जी का जो भाषण होगा वह एक महानायक के रूप से सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, पूरी देश की शक्तियां साथ में आए, अमन का संदेश, भाईचारा का संदेश प्रमोट करे, संपन्नता की ओर और आगे बढ़े, और ऑल्सो एक कटाक्ष जरूर डालेंगे कि जो देश जहां पे टेररिज्म पनप रहा है, जो हार्टबीट कहते हैं टेररिज्म का, चाइना और पाकिस्तान, बिना उनका नाम लिए कहेंगे कि जो टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हैं वह जाने कि इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। उसी जैसे देखो ना कि कहते हैं कि जो आग लगाने वाला खुद को फायर फाइटर समझता है, तो ये जो इमरान खान का स्पीच है, पहले आप आग लगाओगे और फिर प्रिटेंड करो कि मैं फायर फाइटर हूं, वो वाला हो गया। ठीक है, ये तो जो मोदी जी का स्पीच होगा बड़ा संतुलित होगा और वो लुभाने वाला स्पीच होगा, जिससे उनकी जो प्रतिमा है, जो गरिमा है, वह और बुलंद होगी। बहुत शुक्रिया देव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप तो सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण जब होगा तो सबसे पहले टाइम्स नाउ नव भारत एक बड़ी कवरेज लेकर आएगा। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक।